ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی کیمراز اور ای چالان سسٹم کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سمیت متعلقہ محکموں کے افسران اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی آئی جی ٹریفک میونسپل کمشنر کے ایم سی افضال زیدی بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ افسران کی بھی اجلاس میں شرکت۔ کمشنر کراچی نے کہا سیف سٹی کیمراز اور ای چالان کراچی کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اوور اسپیڈنگ موٹر سائیکل کو 5,000، کار کو 15,000 اور ہیوی ٹریفک کو 20,000 تک جرمانہ ہوگا۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ہیوی ٹریفک بھی اپنی اسپیڈ کی حدود میں رہتے ہوئے گاڑیاں چلائیں، بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر 50,000 روپے تک جرمانہ لگے گا۔ اسی طرح غلط لین، سگنل توڑنے، ہیلمٹ نہ پہننے اور ون ویلنگ پر بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے زرداری ہاؤس میں محترمہ فریال تالپور سے ملاقات کی، جس میں شہر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی چیئرپرسن فریال تالپور سے زرداری ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی، جس میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے فریال تالپور سے کراچی کے ترقیاتی امور پر بریفنگ دی۔ محترمہ فریال تالپور نے شہری ترقی کے لیے کے ایم سی کی کاوشوں کو سراہا، شہری انفراسٹرکچر کی بہتری، عوامی ریلیف اور میونسپل سروسز کی مزید بہتری کی ہدایت کی۔ چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی کاوشوں سے ترقیاتی کام جاری رہا۔ ون بحریہ نیول کالونی میں سیکٹر ایس کے 1 اسٹریٹ میں ٹی ایم سی، بلدیہ اور کلیک کے اشتراک سے سی سی فلورنگ اور پیور بلاک کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آسکانی صاحب سے اور ٹاؤن ناظم عبدالکریم آسکانی صاحب کے ہم مشکور ہے کہ اس نے سیکٹر 1 کہ اس کے گلی کا کام بڑا مضبوط اور پائیداری سے کیے ہے۔ ہماری گلی کی حالات بہت زیادہ خستہ تھی، سب یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور ڈسٹ مٹی وغیرہ گھروں میں بہت زیادہ جا رہی تھی، تو ہم لوگ اس لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو ماشاءاللہ ابھی جو کام ہوا ہے اور کام بہت اچھا ہوا ہے۔ یہی کہوں گا کہ میں انتہائی مشکور ہوں عبدالکریم آسکانی کا، جنہوں نے یہ گلی روڈ بنا رہے ہیں، تو میکسیمم لوگوں کا اس روڈ پہ آنا جانا تھا۔ یہ روڈ تھوڑی بڑی ہے باقی گلی کی نسبت، یہ بڑی مہربانی انہوں نے اس پہ دھیان دیا، اس کو بنایا۔ میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن فہد عباسی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی ملازمین کے دینی نام مسئلے کا حل نکال دیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن صدر کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کر دی گئی، جس سے محلے میں عملے میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر ٹاؤن کے نیو میونسپل کمشنر فہد عباسی ملازم دوست نکلے۔ چارج سنبھالنے کے فوری بعد ملازمین کی پریشانی دور کر دی اور تنخواہیں ادا کر دی۔ فہد عباسی کا کہنا ہے ملازم بہت محنت کرتے ہیں، وقت پر تنخواہ ملنا ان کا حق ہے۔ مجھے ابھی 2 دن ہوئے ہیں چارج لیے ہوئے، تو آتے ہی میں نے سب سے پہلے یہ تنخواہ کا مسئلہ حل کر دیا۔ تنخواہیں سیلریز میں نے کر دی ہیں، انشاءاللہ وہ آج یا صبح تک امپلائیز کے اکاؤنٹس میں ڈیبٹ ہو جائیں گی۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ چیئرمین صاحب کی جو ویژن ہے اور سندھ گورنمنٹ کا جو ویژن ہے، سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز ہیں، منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہے، ان کے مطابق قانون میں رہ کے ہم کام کریں گے، اور جو امپلائی کام کرے گا اس کو سیلری ملے گی۔ جو امپلائیز گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کام پہ نہیں آتے ہیں تو ان کو سیلریز کے لیے بالکل سختی سے میں نے ہدایت دی ہے کہ ان کو سیلری نہیں ملے گی، جو کام کرے گا اس کو ہی سیلری ملے گی۔ اور انشاءاللہ صدر ٹاؤن عوام کے لیے ہم چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ جو ذمہ داری میرے حصے میں آتی ہے میں اس کو بھرپور اچھے انداز میں کروں گا، اپنی کوشش پوری کروں گا۔ میونسپل کمشنر فہد عباسی نے افسران کو ہدایت جاری کی کہ ملازمین کی حاضری کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے، جو ملازم غیر حاضر ہیں اس کی تنخواہ روکی جائے۔ انہوں نے واضح کیا جو ملازم کام کرے گا ادارہ اس کی خدمت کو سراہے گا۔ کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔
म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में गटर और मेन होल के ढक्कन गायब होने की शिकायत पर फौरी नोटिस लेते हुए वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को बाज़ाब्ता तौर पर खत इरसाल किया। खत में निशानदेही की कि खुले मेन होल्स शहरियों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं और किसी भी नाखुशगवार हादसे का सबब बन सकते हैं, लिहाजा मुतल्लिका मकामात पर गटर के ढक्कन तरजीही बुनियादों पर नस्ब किए जाएँ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस लियारी टाउन की जानिब से लियारी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हुक्काम को इरसाल करदा खत के जरिए सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि पूरे लियारी में टूट फूट के शिकार मैन होल्स को फौरी तौर पर दुरुस्त करें और तमाम मैन होल्स पर ढक्कन नस्ब किए जाएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस ने वाजे किया कि खुले और खराब मैन होल आवाम के लिए मुसलसल परेशानी और हादसात का बायस बन रहे हैं, इसलिए मुताल्लिका अमला हंगामी बुनियादों पर तमाम मैन होल्स की मरम्मत और कवर की तनसीब को यकीनी बनाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की जहमत या दुश्वारी का सामना न करना पड़े। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने कहा कि गटर के ढक्कन गायब होने से हादसात भी होते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आवाम को भरपूर मुआवनत फराहम करें। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेरे तमाम यूनियन कमेटी नंबर 4 लियाकताबाद में मैटरनिटी होम का इफ्तिताह और फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। टाउन चेयरमैन फराज हसीब कहते हैं मैटरनिटी होम का मकसद इलाके की माँ और बच्चों को बेहतरीन मेयारी और बरवक्त सेहत की सहूलियात फराहम करना है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने म्यूनसिपल कमिश्नर दरिया खान पताफी और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सायरा के हमरा में टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर इंतजाम लियाकताबाद मैटरनिटी होम यूनियन कमेटी नंबर 4 का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने म्यूनसिपल कमिश्नर दरिया खान पताफी और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सायरा के हमरा लेबर रूम, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वेटिंग एरिया, मेडिकल स्टाफ और दीगर शोबाजात का तफसीली मुआयना किया और फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। चेयरमैन फराज हसीब ने कहा मैटरनिटी होम का मकसद इलाके की माओ और बच्चों को बेहतरीन मेयारी और बरवक्त सेहत की सहूलियात फराहम करना है। टाउन इस मरकज को जदीद तकाज़ों के मुताबिक चलाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आवाम को सेहत, सफाई और तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारा अवलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सायरा ने कहा मैटरनिटी होम का इफ्तिताह शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। चेयरमैन फराज हसीब और उनकी टीम अवामी खिदमत का जज्बा रखती है और सेहत के शोबे में इनकी कोशिशें काबिल तारीफ है। हम इस मरकज की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर दरिया खान पताफी ने कहा कि इदारे में अमले की बेहतरी, अद्वियात की फराहमी, साफ सुथरा माहौल और शऊर उजागर करने के लिए इजाफी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ये मरकज इलाके के लिए एक मुकम्मल सेहत बख्श सहूलत साबित हो। अवामी सहूलत और फलाह बहबूद के सिलसिले में टाउन इंतजामिया की जानिब से डाक खाना चौरंगी पर फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। इस कैंप में शहरियों को बिला मुआवजा मुख्तलिफ फौरी तशखीसी सहूलियात फराहम की गई हैं। फ्री ब्लड टेस्ट, फ्री शुगर लेवल टेस्ट, दीगर बुनियादी मेडिकल टेस्ट। इन तमाम तिबी सहूलियात का मकसद इलाके के अवाम को सेहत के हवाले से फौरी मुफ्त और मेयारी सहूलतें फराहम करना है। चेयरमैन फराज हसीब ने मजीद कहा कि ये कैंप अवाम के लिए सेहत की सहूलियात को इनकी दहलीज तक पहुँचाने की अमली कोशिश है और आइंदा भी मजीद फ्री कैंप्स लगाए जाएंगे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन लियाकताबाद टाउन इसाक तैमूरी, चेयरमैन यूनियन कमेटी नंबर 4 उबैद अहमद खान, वाइस चेयरमैन यूनियन कमेटी नंबर 4 तला हसीब और दीगर अफसरान भी इनके हमरा मौजूद हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स का तफसीली दौरा किया और 6 गलियों के प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स का तफसीली दौरा किया और 600 गलियों के प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती कामों का बगौर मुआयना किया। इन्होंने सेक्टर 11J, 11L और 11E समेत दीगर इलाकों में प्योर ब्लॉक की तनसीब के अमल की रफ्तार, मयार और मजमूई पेशरफ्त के हवाले से मुतालिका अफसरान से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और मकामी मकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे जिन्होंने चेयरमैन को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि न्यू कराची टाउन में जारी 600 गलियों का मंसूबा टाउन की तारीख का सबसे बड़ा और अहम तरक्याती मंसूबा है जिसका मकसद शहरियों को पायदार, मजबूत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है। इन्होंने कहा कि प्योर ब्लॉक की तनसीब के जरिए न सिर्फ गलियों की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि बारिशों के दौरान निकासी आप के मसाइल भी मौसर अंदाज में कम होंगे। इनका कहना था कि हम अपने टाउन को चमकता दमकता और मुकम्मल मॉडल टाउन की शक्ल में देखना चाहते हैं, इसलिए तमाम तरक्याती काम मेयार के आला तरीन तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल किए जा रहे हैं। किसी भी किस्म की गफलत या जल्दबाजी नाकाबिले कबूल है। इस वक्त हम 5B3 के अंदर मौजूद हैं और जो हमने 600 गलियों का प्रोजेक्ट का ऐलान किया था उसके मुताबिक यहाँ पे इस पहले फेज़ में 15 गलियाँ जो हैं वो बननी है और इस वक्त ये काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और पूरे इस वक्त न्यू कराची टाउन के कोई 17 सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और उसके बाद दूसरे फेज़ के अंदर हमारे मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं
जिनकी मेन रोड्स जो हैं, जो मेन गलियां हैं, बड़ी सड़कें हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं, इंशाल्लाह उससे कारपेट करेंगे और इस तरह से न्यू कराची टाउन इंशाल्लाह एक बदलता हुआ टाउन नज़र आएगा। पहले लोग ये समझते थे कि ये उबलते हुए गटर और टूटी हुई सड़कें, उजाड़ हमारे जो है वो पार्क, ये हमारी निशानी है न्यू कराची की। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची बदल रहा है। अब तक 24 पार्क हम रेनोवेट कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम ख्वाजा अजमल नगरी UC 3 के अंदर मौजूद हैं और ये हमारा सेक्टर 4 का एक वार्ड है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो टाउन चेयरमैन साहब का विजन था 600 गलियों के हवाले से, तो यहाँ पे ये काम बड़े ज़ोरों शोरों के साथ जो है वो स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है और इंशाअल्लाह तामीर तरक्की का ये सफ़र है जो पूरे UC 3 में जो है ना ये बैकवर्क काम चल रहा है। इसी तरीके से सेक्टर 4 के अंदर, 5C2 के अंदर, 5B3 के अंदर, 5C1 के अंदर, ये तमाम सेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल हमारी UC 3 है जहाँ पे जो है वो बैकवर्क के अंदर जो है वो पेवर्स ब्लॉक का काम चल रहा है। टाउन चेयरमैन साहब पे मौजूद है और यहाँ पे इंशाल्लाह तकरीबन अगले 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे से जो है वो 10 गलियाँ हैं जो ये कंप्लीट हो जाएंगी। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि 600 गलियों में तरक्याती काम तेजी से जारी है और कोशिश है कि आवाम को बेहतरीन सहूलियात जल्द अज जल्द फराहम की जाए। चेयरमैन ने मुख्तलिफ गलियों में जाकर ब्लॉक के लेवल को रंग निकासी, आप के निज़ाम और सफाई इंतजाम का भी जायजा लिया। इन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि जहाँ कहीं भी कमी महसूस हो इसे फौरी तौर पर दूर किया जाए और शहरियों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। दौरे के दौरान चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कराची में गटर में गिर कर जाँ बहक होने वाले मासूम बच्चे के अफसोसनाक वाक़े पर वालिदैन से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार भी किया। इन्होंने कहा कि एक मासूम बच्चे का यूं ज़ाया हो जाना पूरे शहर के लिए दिल खराश सानहा है। वालिदैन जिस अजियत से गुजर रहे हैं हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत दी कि मेन होल कवर्स की निगरानी को सख्त बनाया जाए, टूटे हुए कवर्स फौरी तब्दील किए जाएं और सीवरेज लाइनों की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। इनका कहना था कि तरक्याती मंसूबों के साथ आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और किसी भी इदारे की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की ज़ेर सदारत गडाब टाउन ऑफिस में अफसरान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें महकमों के अफसरान ने जारी तरक्याती मंसूबों, टैक्सेस और इंतज़ामी अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग रिपोर्ट पेश की। इसी बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर की ज़ेर सदारत गडाब टाउन ऑफिस में महकमा जाती अफसरान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जारी तरक्याती मंसूबों, टैक्सेस और इंतजामी अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग पेश की। इजलास में सड़कों की तामीर, सीवरेज लाइनों की बेहतरी, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई, सफाई सुथराई और दीगर जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अफसरान ने चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए किए गए इक़दाम से भी आगाह किया। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि गडाब टाउन में जारी तरक्याती काम शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए हमारे पुख्ता अज़्म की वाज़ेह मिसाल है। किसी भी मंसूबे में ताख़ीर, लापरवाही या गैर मियारी काम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम महकमे अपने फ़राइज़ दियानतदारी से अंजाम दें और अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि टाउन इंतजामिया शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। तमाम शोबे बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं और फील्ड वर्क में तेज रफ्तार पैदा करें ताकि तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग रोजाना की बुनियाद पर की जा रही है ताकि कामों में शफाफियत, मयार और तेजी बरकरार रहे। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट हिदायतुल्लाह शेख ने टैक्स रिकवरी के निजाम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एडवर्टाइजमेंट टैक्स वसूली के अमल को मजीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए जामा हिकमत अमली मुरतब की गई। फील्ड स्टाफ को वाज़ेह हिदायत जारी की गई है। टैक्स रिकवरी में ताखीर या गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मकसद रेवेन्यू में इजाफा करके टाउन के तरक्याती मंसूबों को मजबूत माली बुनियाद फराहम करना है। इस मौके पर दीगर महकमा जाती आला अफसरान भी मौजूद थे। उस्मानाबाद के यूनियन कमेटी वाइस चेयरमैन फैसल नागौरी ने इलाके में कायम तजावजात और गैर कानूनी बाजार के हवाले से कमिश्नर कराची और असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन को बाज़ाब्ता खत इरसाल किया जिसमें दरख्वास्त की कि इलाके से गैर कानूनी बाजार को मुस्तकिल बुनियादों पर हटाया जाए ताकि आवाम को सहूलत फराहम की जा सके। उस्मानाबाद के यूसी वाइस चेयरमैन फैसल नागौरी गैर कानूनी बाजार के खिलाफ सरगर्म हो गए। कमिश्नर कराची और असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन को खत लिख दिया। खत में तजावुजात हटाने के लिए दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानिब यूसी वाइस चेयरमैन फैसल नागौरी ने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर के महकमा इंसदाद तजावुजात के हमरा उस्मानाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जिसमें मुतादिद ठेले पथारे जब्त किए गए हैं। फैसल नागौरी का कहना है कि तजावुजात ने इलाके का नक्शा
नक्शा बदल दिया है। पैदल चलने की जगह भी बाकी नहीं रही। लोग परेशान हैं। तजावुजात के सबब एक मोटर बाइक भी नहीं गुजर सकती। इन्होंने कहा कि कमिश्नर कराची और स्टैंड कमिश्नर अगर दरख्वास्त पर कार्रवाई करें तो मालूम चल जाएगा कि कौन लोग तजावुजात लगवाने वालों के साथ हैं और इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची ने केमाड़ी फिशरी रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके दौरान मुतअद्दिद ठेले और पथारे हटाकर जब्त कर लिए गए। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से केमाड़ी फिशरी रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें मुतअद्दिद ठेले पथारे जब्त किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान, डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी राजा तारिक चांडियो की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें स्टैंड कमिश्नर किमाड़ी मदीहा नारेजो ने भी हिस्सा लिया। कार्रवाई किमाड़ी फिशरी रोड पर की गई, जहाँ से मुतअद्दिद ठेले पथारे, टेबल कुर्सियाँ और तख्त समेत दीगर सामान जब्त किया गया। सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान का कहना है, रोड और फुटपाथ पर किसी को भी सामान रखने की इजाजत नहीं है। जो लोग तजावुजात लगा रहे हैं, इनके खिलाफ माजी में भी मुकदमा दर्ज करवाए हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। बल्दिया टाउन जिला केमाड़ी में सीवरेज के मेन डिस्पोजल पॉइंट्स के निज़ाम की बेहतरी मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। तरक्याती कामों में तेजी, डिस्पोजल पॉइंट्स के मसाइल मुस्तकिल हल की जानिब पेशरफ्त हो रही। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दिया टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की खुसूसी तवज्जो से तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। 36 इंच खतर की नई सेवरेज मेन डिस्पोजल लाइन अब तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और मुकम्मल होने पर यूनियन काउंसिल 12 और 13 के तमाम डिस्पोजल पॉइंट से सेवरेज के मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी MPA लियाकत अस्कानी, टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम अस्कानी की काविशों से ये लाइन बिछाई जा रही है, जो कि CDP स्कीम के जरिए करवाई जा रही है। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम अस्कानी का कहना है कि ये सेवरेज लाइन मेन हब रिवर रोड पर मवाज नाले से गुलशन मजदूर, पाकिस्तान चौक, दाऊद कोट, नेवल कॉलोनी और मुशर्रफ कॉलोनी तक बिछाई जाएगी, ताकि हर इलाके के डिस्पोजल पॉइंट फाल हों और सीवरेज के पानी का मुनासिब निकास यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन टाउन बल्दिया अब्दुल करीम अस्कानी ने साइट का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन के जारी काम का मुआयना किया और मुताल्लिका अमले को जल्द तकमील की हिदायत दी। रुकन सूबाई असम्बली लियाकत अली अस्कानी के मुताबिक अवामी खिदमत पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है और खिदमत का ये सफर जारी रहेगा। मंगूपी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने अलजन्नत सिटी पार्क में सबलीज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के तकरीब में शिरकत की और कहा कि अपना घर हर किसी का ख्वाब होता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंगोपी टाउन में जन्नत सिटी पार्क में सबलीज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ अलाट को सबलीज के डॉक्यूमेंट्स हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में मंगोपी टाउन के चेयरमैन हाजी मोहम्मद नवाज बिरोही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट के तंजीमी सदर सिद्दीक अकबर ने खुसूसी शिरकत की। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बिरोही और डायरेक्टर मुजम्मिल बुलवानी का कहना था कि महंगाई के इस दौर में मकान बनाना सिर्फ एक ख्वाब है। देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह के स्कीम्स जो है ना हमारे लिए बड़े खुशाइंद है, क्योंकि यहाँ एक तो पढ़े लिखे लोग हमारे इलाकों में आएंगे और इस मौके से फ़ायदा उठा के जो है मैं अल जन्नत के साथ साथ जितने भी यहाँ हमारे सोसाइटीज़ हैं उनको मैं दावत भी दूंगा। जिस तरह हमने नया नाज़माबाद अल हबीब ग्रुप के साथ जो है एक हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सरजानी में एक मुनफरद किस्म का एक पार्क अरबी तरह का बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो है हम वहाँ पे रोड भी तकरीबन 4 किलोमीटर रोड है, जिसमें से 2 किलोमीटर रोड नई रोड बन रही है और 2 किलोमीटर रोड का पेच वर्क हो रहा है। उसके साथ साथ पब्लिक सिटिंग एरिया भी है और पब्लिक फूड जो है स्ट्रीट भी हम वहाँ बना रहे हैं। तो मैं इनको भी दावत दूंगा। इलाके की खुशहाली के लिए, आपके जो है सोसाइटी के लिए भी ये मुस्बत कारआमद होगा कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है यहाँ पे अपने रोड्स और मोनूमेंट्स लोकेशन अच्छा बनाने के लिए हम अगर मिलके काम करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ये हमारा अल जन्नत सिटी का प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 32 एकड़ पर ये फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 650 प्लॉट हैं और ये हमने 2021 में शुरू किया था और 2023 में इसका पोजीशन हमने हैंड ओवर कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस प्रोजेक्ट की आखिरी ईंट जिसको कहते हैं सब लीज लोगों को देकर, जो प्रोजेक्ट पर, जो बिल्डर पर लोगों का सबसे बड़ा एतमाद होता है, वो एतमाद आज पूरा होने जा रहा है कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को सबलीज आज देने हम जा रहे हैं। जबकि दीगर मेहमान ग्रामी में मंगोपीर PS 118 के MPA मोहम्मद नसीर और डायरेक्टर मोहम्मद खालिद खान दीगर भी मौजूद थे।
چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی کاوشوں سے ترقیاتی کام جاری ہے۔ ہارون بحریہ نیول کالونی میں سیکٹر SK1 اسٹریٹ میں TMC بلدیہ اور کلک کے اشتراک سے CC فلورنگ اور پیور بلاک کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی عوام دوست پالیسیز کا ثمر بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی کام بدستور جاری ہے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کیماڑی MPA لیاقت علی آسکانی اور صدر PS 111 ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی کاوشوں سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ہارون بحریہ نیول کالونی میں سیکٹر SK1 اسٹریٹ میں TMC بلدیہ اور کلک کے اشتراک سے CC فلورنگ اور پیور بلاک کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے دیرینہ مسئلہ حل کروانے اور CC فلورنگ پیور بلاک کے کام شروع کروانے پر پاکستان پیپلز پارٹی MPA لیاقت علی آسکانی اور ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لیاقت آسکانی صاحب سے اور ٹاؤن ناظم عبدالکریم آسکانی صاحب کے ہم مشکور ہے کہ اس نے سیکٹر 1 کہ اس کے گلی کا کام بڑا مضبوط اور پائیداری سے کیا ہے۔ ہماری گلی کی حالات بہت زیادہ خستہ تھی، سب یہاں ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا اور ڈسٹ مٹی وغیرہ گھروں میں بہت زیادہ جا رہی تھی، تو ہم لوگ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو ماشاءاللہ ابھی جو کام ہوا ہے اور کام بہت اچھا ہوا ہے۔ یہی کہوں گا کہ میں انتہائی مشکور ہوں عبدالکریم آسکانی کا، جنہوں نے یہ گلی روڈ بنا رہے ہیں، تو میکسیمم لوگوں کا اس روڈ پہ آنا جانا تھا۔ یہ روڈ تھوڑی بڑی ہے باقی گلیوں کی نسبت، یہ بڑی مہربانی انہوں نے اس پہ دھیان دیا، اس کو بنایا۔ بلدیہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر عوام تسلی کا اظہار کر رہے ہیں۔ گلشن اقبال بلاک 13D2 میں بلدیاتی اداروں کی غفلت سے سڑک کا ایک حصہ مکمل بند ہو گیا۔ گڑھے اور جگہ جگہ سیوریج کے پانی نے علاقہ مکینوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عامر آوان سے۔ عامر آوان، بتائیے گا۔ جی، تو اس وقت ہم موجود ہیں گلشن اقبال بلاک 13D1 میں، اور جیسا کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گلیاں جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ جگہ جگہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے پوری سڑک جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرے کیمرہ مین مقید اگر آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پر کس قدر روڈ پہ جو ہے وہ سیوریج کا پانی جمع ہے، عوام کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے متعدد بار یہاں پر ہم خبر بھی دے چکے ہیں، بلدیاتی نمائندگان کو اس پہ آگاہ بھی کر چکے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو ہم نے اس پہ متعدد بار آگاہ کیا، عوام کی جانب سے متعدد بار درخواست جمع کروائی گئی، لیکن تاحال یہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ ظاہر کیا ہے کہ ڈاکٹر فواد جو یہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہیں، انہیں بھی متعدد بار درخواست جمع کروائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سنوائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے۔ علاقہ مکینوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی بلدیاتی نمائندہ جو ہے وہ اس پر کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو، چاہے وہ ٹاؤن ناظم ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹریفک جیم کے مسائل شدت اختیار کر گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عوامی صحت کے لیے یہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ ایک شدید مشکل کا وجہ بن رہا ہے۔ عوامی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام میں شدید وبا کا جو ہے وہ مسئلہ اجاگر ہو رہا ہے۔ ایک طرف ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ واٹر اینڈ سیوریج کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر آوان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔